Mela and how it was achieved. What is Kumbh Mela? Kumbh Mela is the biggest congregation of human beings on the earth, is largest peaceful human congregation. जैसे लड़ाई झगड़े में बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वार्स होते हैं, तो there is huge human congregation that is not counted. So it is the largest peaceful human congregation on earth, and it was inscribed in UNESCO representative list of intangible cultural heritage of humanity. मानवता की जो इनटेंजिबल, जिनको कि हाथ से छू के महसूस नहीं किया जा सकता, जैसे ताजमहल आपका टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, यूनेस्को की लिस्ट में है, पीसा की मीनार है, उसी तरह से कुंभ मेला भी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में है। जैसे आज आज योग दिवस है, तो आज के दिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आई इंटरनेशनल योगा डे पे पिछले लास्ट टू लास्ट ईयर या कुछ दिन बहुत सारे लोगों ने एक साथ योगा किया था वर्ल्ड ओवर। सो IYD इज ऑल्सो नाउ इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ intangible cultural heritage of humanity, यूनेस्को की लिस्ट में है। सिमिलर विद कुंभ मेला। कुंभ मेला टेक्स प्लेस एट 4 cities, namely प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक every 12 years. But out of all these four, the largest Kumbh Mela is organized on the divine confluences of three most pious rivers, out of which two are visible, Ganga and Yamuna, and mythical river Saraswati. Normally it is called, अलग-अलग explanation है सरस्वती के। some say that it is still there, कहीं कहीं बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो विद्वान लोग इकट्ठा होते हैं, their intelligence combined is itself Saraswati. So Ganga, Yamuna and Saraswati के congregation पे Kumbh Mela. This is the brief background of Kumbh Mela. Coming to the statistics, Kumbh Mela is normally 53 days long, consists of about 10 to 12 main bathing days. And during last Kumbh Mela, 2019 Kumbh Mela, more than, as per state government's data, more than 24 crores pilgrims visited Allahabad. It was the highest footfall. Mela witnessed in the, not only the Mela witnessed the highest footfall, but it was more than the annual footfall of tourists. Uttar Pradesh has received between 14 to 17. आप ये समझिए कि 53 डेज में इतने लोग आए केवल इलाहाबाद में, जितने लोग पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में नहीं आए थे। रेलवे हैज रन अबाउट 900 स्पेशल ट्रेन। तो हमने कैसे कोऑर्डिनेट किया, कैसे अपनी कैपेसिटी बताओ, हाउ डिड वी कोऑर्डिनेटेड with civil administration by stating our capacity, stating our constraints, and how we performed beyond the constraints and received the appreciation. That story I am going to narrate today. एक इसके पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहूंगा कुंभ मेला के बारे में। चलिए तो एक दो बात डिस्कस कर लेते हैं, then I will show. What is the methodology of crowd management? क्राउड को मैनेज कैसे करेंगे? कैन समबडी पॉइंट आउट कि क्राउड को मैनेज करने में व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कैन समबडी टेल, कैन समबडी गिव सम सजेशन? Okay, I will proceed further. In controlling the crowd, the first thing is you have to assess the crowd. कितनी आनी है crowd? आपके पास एक रफ estimation होना चाहिए, both in space and time sequence. That means you should know day by day on which day how many persons will come, and you should also know that on which station how many persons will come, station wise and day wise. That is meant by the space and time sequence. Then you have to assess their movement patterns. You have to arrange for the expected emergency medical facilities. क्योंकि अगर एक भी आदमी गिर गया, बेहोश हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, तो that creates a panic. And panic is the worst thing which can happen when you are controlling the crowd, because then panic propagates very fast. So panic नहीं होने देने के लिए you have to arrange the emergency medical facilities. आपको उनके मूवमेंट देख के रखने पड़ेंगे कि लोग किधर से जाते हैं। किसी स्टेशन पे कोई शॉर्टकट होते हैं, सारे लोग वहीं से घुसने लगते हैं, वहीं से ट्रेन आ गई, कोई रन ओवर हो गया तो पैनिक हो जाएगा। तो आपको मूवमेंट पैटर्न रेगुलेट करने हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज and you have to assess your available infrastructure and enhance the capacity. कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे एक ब्रिज है स्टेशन पे तो एक ही ब्रिज से काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं। जो आपको जितना चाहिए उतना आप रिसोर्सेज मांगिए पहले से। एटलीस्ट कोई रिसोर्सेज नहीं देगा, देन यू विल आल्सो हैव वन डिफेंस। कुछ हो गया तो आप कहेंगे कि हमने तो ये प्लान किया था, हमको नहीं मिला। प्लान फॉर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज।
फाइंड आउट द स्टेक involved in crowd management. That is normal stakeholders. हम लोग क्या करते हैं? The biggest mistake is कि whenever we are going to control the crowd, we limit ourselves to the railway boundary. That should not be there. You should consult all the stakeholders like civil administration, police personnel, state transport, BSNL, paramilitary, military, everybody. यू शुड कंसल्ट, क्योंकि आपको किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, आर्मी को भी बुलाना पड़ सकता है किसी, और एन वक्त पे आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि आपने हमें बताया नहीं था, यू आर नॉट टोल्ड अस इन एडवांस. सो फॉर दैट मैटर यू हैव टू टेल देम इन एडवांस, रीच आउट टू देम. आप उनसे पहले मीटिंग करिए, होल्ड द मीटिंग, इनिशिएट द डायलॉग एंड फाइंड आउट देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. हो सकता है वो सोच रहे हो कि आप 1,500 ट्रेनिंग चलाएंगे, आप 900 ही चला सकते हैं, तो बाद में वो कहे कि हमने सोचा था आप 1,500 चलाएंगे. तो फाइंड आउट देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू एंड कम्युनिकेट योर कैपेसिटी एंड योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम एंड देन रिड्यूस ऑल दीज थिंग्स इन राइटिंग एंड गेट इट साइन. रिटन डॉक्यूमेंट होना बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट से क्लैरिटी रहती है. किसी ने क्या बोला, क्या सुना, आपने एक कमिश्नर से मीटिंग की, वो कमिश्नर चला गया, दूसरा आया, उसने कुछ और सोचा. आपने एक एसएसपी से मीटिंग की, वो एसएसपी चला गया, वो आया, कुछ और सोचा. Then you have to make out the joint plans for the movement of crowd. Whenever crowd moves, it comes from civil area to station. और स्टेशन पे क्राउड का ग्रेजुअल इनफ्लो हो, इसके लिए आपको उनके साथ ज्वाइंट मूवमेंट प्लान बनाने पड़ेंगे. एंड देन यू हैव टू कंडक्ट द ज्वाइंट इंस्पेक्शंस. आफ्टर एनडीएमए एक्ट आप लोगों को पढ़ाया गया होगा. इट वाज दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005. उसके बाद से कोई भी ऐसी क्राउड कहीं इकट्ठे होनी है, कहीं डिजास्टर की संभावना है, तो यू हैव टू ले डाउन द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान. डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जैसे स्टेशन है तो यू हैव टू, या कोई बिल्डिंग है तो आपको उसके इमरजेंसी एग्जिट रूट सब दिखाने पड़ेंगे. इमरजेंसी एग्जिट रूट को क्लियर रखना होगा और उन इमरजेंसी एग्जिट रूट का इंस्पेक्शन होना होगा कि वहां कैसे लोग आएंगे, कैसे जाएंगे. ट्रेन ऑल द स्टाफ अबाउट योर प्लान एंड देयर रोल. फॉर मल्टी टीम, डिवाइड कंप्लीट जोन. मल्टी टीम बनाई. रेलवे की सबसे बड़ा रोग है कि अगर आईपीएफ खड़ा है बगल में, वो कमर्शियल से, अगर कमर्शियल उससे कुछ कहने आया तो कहेगा कमांडेंट साहब से कहलवाइए. इसके लिए आप मल्टी टीम बनाइए और उनको ट्रेन करिए अच्छे से. ट्रेनिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल. जब लोकेशन आप बात करते हैं तो कभी ऐसा नहीं कि उधर चले जाओ, वहां से दाएं वाला गेट, वहां से बाएं वाला गेट. लोकेशन शुड ऑलवेज बी नंबर for correct communication. Then you have to develop and implement protocols for communication. अब हमने यहां तक तो डिस्कस किया. अब थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये मेथोडोलॉजी है, इसमें लेट्स से अच्छा कुछ और डिस्कस कर ले. देन और क्या होता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, whenever you have to manage the crowd, then effective communication between stakeholder and the guest has to be ensured. जो जैसे क्राउड है और आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है कि इधर से आना है और क्राउड को बताया ही नहीं है, आपको अखबारों में इश्तेहार देने होंगे, आपको ऑडियो वीडियो सिस्टम में डिप्लॉय करने होंगे, टीवी में बोलना होगा, रेडियो टॉक्स देनी होंगी. यू हैव टू कम्युनिकेट वेरी इफेक्टिवली विद योर कस्टमर्स. And then for communication during the emergency, you have to deploy the multiple layers. ये आप नहीं सोच सकते कि उस समय मोबाइल से बात करेंगे और लोग सुन लेंगे. आपको मोबाइल रखना होगा, लैंडलाइन रखना होगा, वीसेप सेट्स रखने होंगे, डेस्क फोन, इस तरह से यू हैव टू डिप्लॉय मल्टीपल लेयर्स. अगर एक फेल हो जाए तो दूसरे से आप बात कर सकें. कम्युनिकेट योर प्लानिंग. बाद में आप ये बहाना नहीं चलता है कि आप कहते हैं कि फोन नेटवर्क तो चला गया था, आपने पहले से क्यों नहीं प्लान किया. बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको कलर कोडिंग से, पिक्टोरियल साइनेज से कम्युनिकेट करिए. मल्टीलिंगुअल सिस्टम बनाइए, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए मल्टीलिंगुअल सिस्टम बनाइए. पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करिए, ऑडियो वीडियो सिस्टम यूज करिए. देन आप अपनी प्लानिंग बहुत एडवांस में बताइए. ऐसा नहीं कि जब कुंभ आ गया या कोई इवेंट आ गई तो आप 5 दिन पहले बता रहे हैं, तब तक लोग अपने घर से निकल चुके होंगे. एटलीस्ट 1 month इन एडवांस यू शुड कम्युनिकेट योर प्लानिंग टू your customers. Requisition, आप कैमरा अधिक से अधिक यूज करें. Then fixed location and time each day for each team throughout the event. मतलब एक आदमी को आज आपने 10 नंबर गेट पे लगाया, कल 9 नंबर गेट पे लगा दिया, उसको 10 नंबर गेट का क्राउड का फील हो गया, बट अब 9 नंबर में लगाया तो वो काम नहीं कर पाएगा. जैसे आप लोगों का एक शॉप अलर्ट हो जाती है, एक ट्रेड अलर्ट हो जाता है, तो वही काम करते हैं. वैसे लोगों की जब आप ड्यूटी लगाएंगे
एक ही जगह उसको लगातार रखिए, डू नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ टीम। उसके बाद आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पे आप कंप्यूटर सिमुलेशन कर सकते हैं, होल इवेंट का पता कर सकते हैं कहाँ दिक्कतें आएंगी। सेफ्टी ऑडिट करवा सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कुंभ मेला हुआ, आग लग गई कहीं, तो उसको बचाने के लिए आपको सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए। मॉक ड्रिल करनी चाहिए आपको, मॉक ड्रिल विद सिक्योरिटी एजेंसी, मॉक ड्रिल विद मेडिकल टीम, मॉक ड्रिल विद डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, मॉक सेफ्टी इवैक्यूएशन प्लान, अगर आग लग गई तो लोगों को कैसे निकालेंगे, फायर सेफ्टी ड्रिल, दिस ऑल मॉक ड्रिल, दिस टेक्स टाइम। मैंने आपको बताया कि मुझे 3 साल लगे थे। तो ये आपको करना होता है। अब देयर आर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ कुंभ मेला। कुंभ मेला में क्या होता है कि पर्सन्स, जो लोग आते हैं आपके, वो प्लेटफॉर्म पे आप उनको नहीं भेज सकते, बिकॉज प्लेटफॉर्म पे थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेन भर के जाती है। आप लोगों को एक कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म को आप वेटिंग एरिया नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें 4 ट्रेनें आती हैं। अगर 4 ट्रेनों के आदमी इकट्ठा हो गए, एक ट्रेन में 3,000 आदमी आते हैं, 12,000 आदमी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो गए, तो वहाँ स्टैम्पेड हो जाएगा, क्योंकि लोग आगे नहा के पहले से बैठ जाएंगे। तो प्लेटफॉर्म हैज टू बी केप्ट एम्प्टी। Then where the persons will wait, you have to erect the special enclosures जहाँ पे लोगों को रखें और कंट्रोल्ड रिलीज करें उनका प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। और उनको कंट्रोल रिलीज करने में दे हैव टू बी स्कॉटेड बाय द आरपीएफ मेडिकल स्टाफ। कोई बेहोश हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनको 30 से 45 मिनट पहले भेजेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्राउड मैनेजमेंट में, जो आपके इवेज एरिया होते हैं, जो एलिवेटेड एरिया होते हैं। आपने अभी पीछे सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी की गाड़ी पंजाब में फ्लाईओवर पे फंस गई थी, तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न था उसका। सिक्योरिटी कंसर्न क्यों था? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ऊंचाई पे थे। जब भी आप किसी ब्रिज में या ऊंचाई पे कंस्ट्रक्टेड स्पेस पे होते हैं, तो आप साइड में नहीं भाग सकते, इसलिए आप बहुत फंसे होते हैं। वहां पे भीड़ आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फुट ओवर ब्रिजेज, मैनेजिंग द फुट ओवर ब्रिजेज इज द मेन चैलेंज। थर्ड चैलेंज इन द हैंडलिंग द पैसेंजर। जो कंफर्म रिजर्वेशन वाले होते हैं वो आना चाहते हैं, उनको समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है। वीआईपीज को मना करना पड़ता है। हम लोगों ने कुंभ मेला में अपने मिनिस्टर तक को मना किया था कि आप साहब आप ना आए स्टेशन पे, और वो नहीं आए थे। ही वॉज काइंड एनफ टू मतलब टू एक्सेप्ट अवर सजेशन। एसीपी ऑपरेशन को ब्लैंक ऑफ करना होता है, वरना आपकी बार बार एसीपी होती रही अगर, तो गाड़ियां आपकी जा नहीं पाएंगी जितने आपने प्लान किए। टेक्निकल फेल्योर नहीं होनी चाहिए। अब पुलिस वालों के हाथ से डंडा ले लेना चाहिए। अगर डंडा पुलिस वालों ने चला दिया तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। रूमर्स को अवॉइड करना चाहिए, इसके लिए ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें। आपके रेलवे स्टाफ को अलग से नजर आना चाहिए। दे शुड वियर स्पेशल जैकेट, दे शुड उनको अपना कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि दूर से पता चले कि इतने दैट दैट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन द पैसेंजर कि हमारे पास रेलवे वाले हैं। और फुट ओवर ब्रिजेज के सब चीज की आपके लोगों को बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वो उसको ये नहीं कहना चाहिए कमर्शियल वाले से पूछो, हर हर रेलवे पर्सन को मालूम होना चाहिए। और कुछ और पॉइंट हैं वो मैं बताऊंगा। एक आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं पहले उसके। आप लोगों को वीडियो दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं सर। नहीं दिख रहा, ओके।
करता हूँ एक बार। अभी वीडियो दिख रहा है? Yes, sir, it is playing now, sir. हाँ सर दिख रहा है सर। साउंड भी आ रही है? No, sir, no volume is not there, sir. साउंड आपके में नहीं आ रही है? अभी साउंड आ रहा है सर। वीडियो की साउंड नहीं आ रही सर। साउंड नहीं आ रही है सर। वीडियो की साउंड नहीं आ रही है? नहीं Yes, sir, only video is playing. No volume is there from the video, sir. अच्छा, एक मिनट। कैसे? शाश्वत, आर यू देयर? अच्छा, ये वीडियो इसकी साउंड नहीं आ रही तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। आई क्या साउंड? अभी आ रहा है। सन 2019 कुंभ मेले में भारतीय रेल का अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश के विभिन्न प्रांतों से करोड़ों तीर्थयात्रियों को कुंभ में लाने और उनकी सुरक्षित वापसी में भारतीय रेल की अहम भूमिका है। प्रशासन का बराबर नजर बनाए रखे थे। वो इसका फीडबैक जा रहा होगा कि ये आवाज प्ले कर दी। रेल गाड़ियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5,100 बाहर से बुलाए गए लाइन से चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध है। 72,000 से अधिक लोगों को चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान की है। श्रद्धालुओं को समुचित सहायता मिल सके इसके लिए 8,000 से अधिक कुंभ रेल सेवक तैनात किए गए। सभी कुंभ रेल सेवकों को और फोर्स के जवान अलग से प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उनके जहन में ये बात दृढ़ कराई गई
कि तीर्थ यात्रियों की सेवा करना स्वयं में कुंभ स्नान जैसा ही बताया है। प्रयागराज के सभी 10 रेलवे स्टेशनों पर निःशुल्क वाईफाई की सुविधा को कुंभ में आए तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को उपलब्ध कराया गया। कुंभ मेले में प्रस्तावित 800 आउटवर्ड स्पेशल ट्रेनों में से पहली बार आधी ट्रेनें समय सारणीबद्ध थी। कुंभ मेले के दौरान इतनी भारी भीड़ में भी सभी स्टेशनों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया। यात्रियों की सुविधा के लिए सुगम साइनेज प्लान का क्रियान्वयन किया गया। इसके साथ ही नई वॉशिंग लाइनों और स्टेबलिंग लाइनों का निर्माण कराया गया। सभी कोचेज में बायो टॉयलेट का प्रयोग किया गया। रेलवे ने कुंभ की जानकारी हेतु एक रेल कुंभ सेवा ऐप भी लॉन्च किया। इस कुंभ में रेलवे ने 50 प्रमुख चल NETM मशीनों को मेला क्षेत्र में क्रियारत कराया है, जिससे स्थान स्थान पर पहुंचकर यात्रियों को रेल टिकट उपलब्ध कराए गए। रेलवे ने सभी स्पेशल तथा प्रयागराज से प्रारंभ होने वाली ट्रेनों के डब्बों पर विनाइल रैपिंग के माध्यम से कुंभ के मनोरम दृश्यों को दर्शाया। इस कुंभ 2019 में बड़ी संख्या में आए प्रवासी भारतीयों का रेलवे द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। मेले में लगभग 74 लाख लोग रेलवे से यात्रा कर चुके हैं बिना किसी शिकायत या अनहोनी के। और ये सब संभव हुआ हमारे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों, जवानों, रेल कर्मियों एवं रेल कुंभ सेवकों के अथक परिश्रम व प्रतिबद्धता से। प्रयागराज के दिव्य कुंभ 2019 में रेलवे ने इस बार निसंदेह यात्रियों के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था व सुगम यातायात का अभूतपूर्व कार्य करके दिखाया। ये अभी जो मैंने आपसे शेयर किया, दिस समराइज द प्रिपरेशंस वी हैव डन। ये वीडियो मैंने बनवाया था कि जब कुंभ समाप्त खत्म हो गया था उसके बाद बनवाया था कि क्या क्या हमने काम किया। तो ब्रीफ में ये आपको बताता है कि कुंभ में क्या काम किए गए। अब मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट हैपेंस, स्पेशल फीचर्स ऑफ ट्रेन ऑपरेशन। ट्रेन ऑपरेशन में इसमें क्या खास बात होती है? एक तो आपको टिकट चेकिंग, चलिए ट्रेन ऑपरेशन छोड़ता हूँ, कमिंग टू द कुंभ। कुंभ में मेन बिदिंग डेज होते हैं जो कुंभ में आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मकर संक्रांति। कुंभ मेला स्टार्ट्स ऑन 15th ऑफ जैन, फिर मकर संक्रांति 15 जनवरी, देन नेक्स्ट बिदिंग डे इज पौष पूर्णिमा, फॉलोड बाय मौनी अमावस्या, व्हिच इज द बिगेस्ट इवेंट फॉर द कुंभ मेला। मौनी अमावस्या के दिन क्राउड एक्सपेक्टेड वाट अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ उम्मीद थी कि लोग आएंगे, बट जो लोग आए वो इससे लगभग डबल थे। और बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि, दीज आर द मेन बेदिंग डेट, 6 मेन बेदिंग डेट। महाशिवरात्रि बहुत कम भीड़ आती है, बट मौनी अमावस्या, पौष पूर्णिमा आदि हैवी क्राउड। और मौनी अमावस्या पर ही 2013 कुंभ में, इससे प्रीवियस कुंभ में स्टैम्पेड हुआ था इन विच 25 to 30 people died at the station and railway earned a very bad name. A judicial committee was appointed which pointed fingers towards railway officials for their carelessness. So this time we were very very alert कि अब की कुछ होने नहीं देना है। How could we achieve that? That I will explain. Planning, सबसे पहली बात जो मैंने आपसे कहा था, असेसमेंट। सबसे पहला हम लोगों ने असेसमेंट किया कि हम कितने लोगों को कैरी कर सकेंगे। कैसे असेसमेंट किया जा सकता है? टेकिंग एन एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या वी हैव टेकन 6 days बिकॉज इट इज ए बिग इवेंट। तो जो डी डे होगा उसके पहले के 2 दिन और बाद के 3 दिन जोड़ा कि कितने लोगों को ले जा सकेंगे बाय स्पेशल ट्रेन, हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन बी कैरीड बाय द ओरिजिनेटिंग ट्रेन एंड हाउ मेनी कैन बी कैरीड बाय द पासिंग ट्रेन।
Adding all these three, we could have carried only 5,40,000 पैसेंजर्स। हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को 5,40,000 पैसेंजर्स का असेसमेंट दिया तो दे वे आर जस्ट सरप्राइज कि 3 करोड़ लोग आ रहे हैं, आप 5.5 लाख ले जाएंगे, आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये है वो है। तो हमने कहा भाई हम 5 लाख नहीं, हम 50 लाख ले जा सकते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म बनाने का पैसा दे दीजिए, जगह दे दीजिए, वी विल इंट्रोड्यूस मोर प्लेटफॉर्म, ज्यादा ले जाएंगे लोगों को। बिना प्लेटफॉर्म ज्यादा बढ़ाए थोड़ी ना ले जा पाएंगे। हालांकि बाद में हम ये 5,40,000 की बजाय लगभग 11-12 लाख लोग और ज्यादा ही ले गए, 20 लाख से ज्यादा लोग ले गए। लेकिन ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यू हैव टू बी वेरी वेरी फर्म इन स्टेटिंग योर कैपेसिटी एंड योर कंस्ट्रेंट्स बिफोर द सिविल ऑफिशियल्स। अदरवाइज क्राउड के में अगर कुछ हो जाता है तो जुडिशियल कमीशन होता है, उसमें फिर रेलवे ऑफिसर्स जवाब नहीं दे पाते कि आपने पहले क्यों नहीं बताया था। सो दिस इज अ टेबुलर डिस्क्रिप्शन कि हमने कैसे अपनी कैपेसिटी कैलकुलेट की। इसकी कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड है, नंबर ऑफ ट्रेन कैलकुलेट कर लीजिए। एक ट्रेन में लगभग 2700-2800 लोग आते हैं, और अगर आप सुपर डेंस क्रस्ट लोड ले लो तब भी 3500 लोग आएंगे। वो एक कहते हैं कैटिल क्लास बना के चला दीजिए तो 4,000 आएंगे, बट कैटिल क्लास भी हम उसको मान नहीं सकते। कैटिल क्लास में एक के ऊपर एक लग जाते हैं, 4,000 वी कैन नॉट गिव, क्योंकि वो आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन पकड़ लेगा। तो कैपेसिटी कैलकुलेशन में ऑलवेज वी टेक 2,800 पर ट्रेन, उससे मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ट्रेन से। नंबर ऑफ ट्रेन ऑल्सो वी हैव प्लान, जैसे आप ये यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, डे वाइज वी हैव प्लान कि किस स्टेशन से कितनी ट्रेनें चलेंगी, इलाहाबाद से कितनी चलेंगी, नैनी से। अभी हम आपको दिखाएंगे इलाहाबाद में। जैसे आप ये देखिए, दिस इज द मैप ऑफ इलाहाबाद एरिया। इलाहाबाद एरिया वी हैव टोटल 10 स्टेशन इन एंड अराउंड इलाहाबाद। You can see Allahabad is a place surrounded by Ganga Yamuna from 2 sides, and 1 side it is connected to the land. तो इस साइड से यमुना आ रही है, दूसरी साइड से ये गंगा जी आ रही हैं, और यहाँ पर संगम होता है। इसी जगह पे 22 करोड़ लोगों को डुबकी लेनी थी। जस्ट टू गिव यू ए पर्सपेक्टिव कि इजराइल की पॉपुलेशन 90-95 लाख है, अमेरिका की पॉपुलेशन 27 करोड़ है, यूपी की पॉपुलेशन 22 करोड़ है, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। तो आप ये समझिए कि 22 इजराइल पूरे पूरे उठ के आए और नहा के चले गए इतनी छोटी सी जगह पे। यू कैन सी दिस प्लेस मैनेजिंग, मतलब जो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड के लोग थे, हार्वर्ड के लोग थे, वो कह रहे थे कि ओनली गॉड कैन ऑर्गेनाइज दिस। हम भी ये कहते हैं कि हम आपको कुछ भी प्लानिंग बता दें, लेकिन अंत में ये इवेंट्स तो भगवान के किए होती हैं, बट स्टिल भगवान आपके ही थ्रू करेगा। आप किसी को भी मानते हो, किसी पे पावर को मानते हो, ही हैज टू एक्ट थ्रू यू ओनली। सो यू हैव टू डू द बेस्ट। जो भी कहा जाता है कि जो जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि योगा कर्मसु कौशलम, बेस्ट वे ऑफ डूइंग योर वर्क इज योगा। आज योगा डे है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बीच में योगा की बातें बता रहा हूँ। कहा गया था व्हेनेवर यू अचीव एक्सलेंस इन योर वर्क, देन यू गेट कनेक्टेड टू द हायर सेल्फ, एंड दैट इज कॉल्ड योगा। Whenever you achieve in any work, you achieve excellence। तो इसमें भी आपको एक्सलेंस अचीव करना होगा, और मैं आपको आगे बताऊंगा प्रेजेंटेशन में how to achieve excellence in managing such event। So just to coming back to the topic, we have 4 stations located on the Howrah Delhi main line, starting from Howrah and Chowki station, then Naini station on the other side of Yamuna river, and Allahabad station and Subedarganj station are located on the main city side of the Yamuna river। Then a line crosses northeastern railway line crosses Ganges, गंगा नदी को पार करती है। तो एक तरफ झूसी है, दूसरी तरफ दारागंज है, एंड देयर इज वन अदर स्टेशन इलाहाबाद सिटी। देन लखनऊ साइड से एक लाइन आती है, ये भी पीछे गंगा जी को ही पार करती है। इसमें एक स्टेशन है प्रयाग, एक नया स्टेशन बनाया था हमने प्रयाग घाट, और एक इसके पीछे स्टेशन है फाफामऊ, जो आपको दिख नहीं रहा, इस मैप पे दिखेगा। ये देखिए गंगा नदी को पार कर फाफामऊ। तो ये स्टेशन थे। तो सबसे पहले हमने इन स्टेशन को डायरेक्शन वाइज बना दिया। क्राउड मैनेजमेंट में फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू सेग्रीगेट। आपके अगर वर्कशॉप में कहीं भी एक्सीडेंट साइट पे लोग इकट्ठा हो जाए, पहला काम करना है उनको बांट देना है। तो हल्ला मचाना है कि चलो भाई एसी वाले पैसेंजर इधर आ जाओ, जनरल वाले इधर आ जाओ, और इनका इधर काट देना है। आपको एक जगह सबको नहीं रखना चाहिए। एक जगह जहाँ ज्यादा लोग हुए, आपने एटम बम की थ्योरी पढ़ी होगी कि 2 पार्ट अलग अलग रखे रहते हैं। एटम बम जब बनाया जाता है, हेलो, আরে গার্গী আগে এক আঙ্গুলটা হবে, তারপরে অন্য আঙ্গুল করতে হবে, এরকম হয় না। বারবার অপশন আছে না, আছে করে। किसी का माइक ऑन है, somebody
आप अपना म्यूट कर लीजिए। जब भी आप जैसे एटॉमिक बम एक्सप्लोजन में भी क्या होता है कि दो अलग अलग क्रिटिकल मास से नीचे दो अलग अलग न्यूक्लियर मटेरियल रखे रहते हैं, when they are joined and the bomb explodes. Similar is the for the क्राउड अगर एक क्रिटिकल मास से ज्यादा हो गई तो इट विल बी इम्पॉसिबल टू हैंडल. So we divided the crowd in these 6 stations. Allahabad Junction was nominated for traveling persons traveling to Kanpur and Mughal Sarai, Satna and Jhansi also. Naini Chivki was nominated for persons traveling to Manikpur, Banda, Jhansi. Similarly, all other stations were also assigned direction wise. इस बार हम लोगों ने लोगों के रुकने के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए, पिछली बार टेम्पररी स्ट्रक्चर थे. एक just to give a perspective, in the Kumbh 2013 it was planned to run only, मतलब the trains run were 11:22. This time it was much more, about 40% more. The challenges in the Kumbh was कि pilgrims arrive, जैसे कोई मौनी अमावस्या हुआ तो 15 दिन से लोग आएंगे लेकिन जाना एक ही दिन चाहेंगे. They arrive in a staggered manner, but departure is usually concentrated immediately after the auspicious bathing day. Heavy congestion at important junction and management of crowd, then multiplicity of agencies involved. बहुत सारी एजेंसीज होती है, जैसा मैंने आपको बताया, आर्मी, पुलिस, सिविल डिफेंस सब होता है, तो उनको एक यूनिफॉर्म कंट्रोल बनाना पड़ेगा जहां सभी लोग बैठे, आर्मी का भी आदमी बैठे, सिविल का भी बैठे, और उसको करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. इसके लिए आपको सालों से लगना पड़ता है, तब जाके लोग एक साथ बैठते हैं. सबके अपने ईगो होते हैं, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशन एंड अपग्रेडेशन, अदर इशूज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम लोगों ने पैसेंजर इंक्लोजर बनाए फॉर द पैसेंजर इन 5 डायरेक्शन. ऑल इंक्लोजर्स वेयर कलर कोडेड. एक जैसे मुगल सराय जाने वाला मान लीजिए ग्रीन है तो उसका इंक्लोजर भी ग्रीन होगा, उसका बुकिंग विंडो भी ग्रीन होगी, उसके पैम्फलेट्स में ग्रीन होंगे, उसके डायरेक्शन भी दिखाई जाएंगे तो ग्रीन कलर में. इट वॉज कलर कोडेड. एडिशनल होल्डिंग एरिया, आप कितना भी कोशिश कर लें, आप अपने स्टेशन पे 10-20 हजार से ज्यादा आदमी नहीं रोक सकते, बट पैसेंजर तो लाख में आएंगे उस दिन, तो उनको कहाँ रोकेंगे आप? उनको आपको रोकना होगा अगल बगल के स्कूल्स कॉलेजेस में. दैट हैज टू बी एक्वायर्ड इन कोऑर्डिनेशन विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. ये हमने किया था इस बार, जो कि पिछली बार नहीं हो पाया था. स्टेशन की एंट्री हमेशा एक तरफ से हो और एफओबी में भी 1 वे मूवमेंट हो. मतलब अगर किसी स्टेशन पे एक ही एफओबी है तो उसमें 2 बनाए जाए. हमने 10वें स्टेशन में 2 एफओबी कराए थे, जिसमें एक थे उसमें 2 बनवाए. कंप्यूटर से सिमुलेशन करके देख लें. Such type of movement plan has to be made and signed jointly. ये मूवमेंट प्लान में आप देखिए, ये संगम एरिया से बना हुआ है, कैसे लोग चलेंगे, किस किस रास्ते से जाएंगे. 2 रास्ते बने हुए हैं. एक रास्ता है जो सीधे जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन अगर स्टेशन पे लोग बढ़ गए तो देयर इज ए लॉन्गर रूट ऑल्सो, जिस पे लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो देर से पहुंचेगा. दिस वॉज इमरजेंसी प्लान. तो इस तरह के प्लान बना के हर गली कूचे में ट्रेवल करके, दिस वॉज अबाउट 10 किलोमीटर स्ट्रेच, इसमें पैदल जाके चेक करके और फिर इनको एसएसपी के साथ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ और रेलवे की तरफ से मैं एडीआर था तो मैंने जो है साइन करके हम लोगों ने इसको फाइनल किया था. और फिर जितने भी पुलिस वाले थे पूरे शहर में, हर एक पुलिस वाइन पे, हर जगह, हर पुलिस थाने में मूवमेंट प्लान अवेलेबल था. सिमिलरली ये जैसे ये है एक स्टेशन का मैप, और रिप्रेजेंटेटिव आपको दिखा रहा हूँ इलाहाबाद स्टेशन का मैप. इसमें एनक्लोजर्स दिखाए गए हैं, दीज आर कलर कोडेड एनक्लोजर. देन वेरियस फैसिलिटीज हैज आल्सो बीन शोन, इसमें कि कहाँ पे फायर टेंडर है, कहाँ एम्बुलेंस है, कहाँ पर रैपिड एक्शन टीम है, कहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं. एवरीथिंग हैज टू बी शोन इन दिस मैप. और ये मैप में चारों तरफ की बाउंड्री भी दिखाई गई, अगल बगल के स्कूल, जैसे दिस इज 1 स्कूल, दिस इज खुसरोबाग, दिस इज डीएसए ग्राउंड. तो ये सब होल्डिंग एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं और इनमें लोगों को रुकवाया गया है. तो आपको स्टेशन से बाहर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है ऐसी बड़ी इवेंट्स मैनेज करने के लिए. फिर उसके बाद हमने जब ये सब कैलकुलेट कर लिया तो हमने पाया कि हमको बहुत सारे आरओबी, 7-8 आरओबी बनवाने थे, कई एफओबी बनवाने थे. तो 700 करोड़ के लगभग काम आइडेंटिफाई किया. और आप देखते हैं कि एक बिल्डिंग भी बननी हो तो सिविल इंजीनियर्स को कभी 4 साल 5 साल टाइम लग जाता है, लेकिन ये 18 महीने में हमने 7 आरओबी, सारे 700 करोड़ के काम हमने कंप्लीट कराए, जिसमें बहुत जगह इंक्रोचमेंट खाली कराना था, जो काम 10-10 साल से नहीं होते थे वो कराए गए.
What is where the infrastructure movement was, जैसे एक एग्जाम्पल लें तो आरयूबी 6 आरयूबी थे जिनको वाइडन किया गया, जो अभी आपने वीडियो में देखा था। आरयूबी वो होता है जहाँ सड़क नीचे से जाती, लाइन ऊपर से जाती है, उसको रोड अंडर ब्रिज कहते हैं। तो वो सकवे अगर होंगे तो वहां पे भीड़ फंस जाएगी, और जब छूटेगी तो एकदम गोली की तरह स्टेशन पे आएगी और स्टेशन पे स्टैम्पेड हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, न केवल स्टेशन में बल्कि स्टेशन के आसपास के एरिया में आपको ट्रैफिक की स्मूथनिंग करनी होगी। 8 न्यू आरओबीज, ये सब किया गया था जिससे शहर में जैम न लगे। 5 नए फुटओवर ब्रिज बनाए गए जिससे वन वे मूवमेंट हो सके। एडिशनल प्लेटफॉर्म्स बनाए गए, नई वॉशिंग लाइन और एक नया स्टेशन भी बनाया गया। CCTV camera large were put in large numbers. These were PTZ type of CCTV camera. Planned till June. Upgradation of facilities were done. Passenger shelters were provided. ये इस तरह से हर स्टेशन का बनाया गया कि जैसे इलाहाबाद स्टेशन में अबाउट 8,800 स्क्वायर मीटर एडिशनल enclosed area was provided to house about 10,000 persons at the station itself. अब हम आपको एक अंदाजा देना चाहते हैं कि इस तरह में मेडिकल फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। जैसे इलाहाबाद स्टेशन पे 12 फर्स्ट एड बूथ हमने बनाए, एक हमने पूरा आईसीयू बनाया था एम्बुलेंस। और मैं आपको बताना चाहूंगा उस ये फर्स्ट एड बूथ जो हमने बनाए थे इसमें लगभग 1 लाख लोगों को दवाएं दी गई। जो आईसीयू बनाया उसमें क्रिटिकली इल 2,000 लोगों की जान बचाई गई लगभग, जो कि अदरवाइज किसी के ऊपर जवाबदेही नहीं होती, लेकिन उन लोगों की डेथ हो जाती, क्योंकि किसी को हाई बीपी, किसी को हार्ट अटैक आया था, किसी का शुगर लो हो गया था, बेहोश होकर जो गिर जाते थे। हमने पहली बार हॉस्पिटल ही बना दिया, मतलब एक आईसीयू ही बना दिया स्टेशन पे। आपको ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। तैयारियां जब हमने प्लान की थी तब का एक वीडियो बनाया था। आई वुड लाइक टू शो दिस वीडियो टू यू। आवाज आ रही है? कैन समबडी कंफर्म वीडियो की साउंड आ रही है? आ रही है सर। ठीक है। आ रही है सर, आ रही है। ये आप देख रहे हैं पीपेक पुल बनते हैं, दीज आर पॉन्टून ब्रिजेज, फ्लोटिंग ब्रिजेज। ऐसे 15 से 16 ब्रिज बनाए जाते हैं गंगा जी पे। ये देखिए, मैं एक बार फिर से बैक करके ले जाता हूँ आप। पॉन्टून, ये पॉन्टून ब्रिज कहलाते हैं। इसमें ये फ्लोटिंग पॉन्टून्स होते हैं, इनके ऊपर ब्रिज बना दिया जाता है। अबाउट 16 सच ब्रिजेज आर मेड। ये स्टेशन नया बनाया गया था, इलाहाबाद शिवकी स्टेशन। मतलब ये स्टेशन ऑलरेडी था, लेकिन 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन था। इसमें प्लेटफॉर्म बढ़ाए गए, बिल्डिंग एमिनिटीज बढ़ाई गई और बहुत सारा एनक्रोचमेंट खाली कराया गया। एक नया ब्रिज बनाया गया। सुबेदारगंज स्टेशन वॉज टोटली अपग्रेडेड फ्रॉम 2 प्लेटफॉर्म्स टू 4 प्लेटफॉर्म्स। ब्रिज, इसी ब्रिज में, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इसी ब्रिज में पिछली बार कुंभ में स्टैम्पेड हुआ था। देन इसकी विड्थ हाफ थी, 6 मीटर थी। देखा गया कि ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड ब्रिज है इलाहाबाद स्टेशन पे। इट कनेक्ट्स ऑल द प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1 टू प्लेटफॉर्म नंबर 10। बाकी ब्रिजेज है वो कोई प्लेटफॉर्म नंबर 1 टू 4 कनेक्ट करता है, कोई 6 टू कनेक्ट करता है, लेकिन दिस कनेक्ट्स ऑल द प्लेटफॉर्म, सेंटर पर है। तो इसकी हमने विड्थ बढ़ा के 6 मीटर से 12 मीटर कर दी, जिसकी वजह से बड़ी सुविधा है। इस तरह की चीजें आपको सोचनी होंगी। ये देखिए, आप एक चीज ध्यान दीजिए, सारे एफओबी कवर्ड किए गए, जिससे ऐसा ना हो कि बारिश आए और लोगों भीगने लगे और भगदड़ मच जाए और देयर में भी स्टैम्पेड। इसलिए ऑल एफओबीज वे आर कवर्ड। जो पुराने भी थे, नहीं कवर्ड थे, उनको कवर करवाया गया। ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी बैठ के, एक पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
This new station was built. ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं, दिस इज अ प्रयाग घाट स्टेशन। इस जगह पर बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, सिविल के लोगों ने इंक्रोच करके बनाया हुआ था, उसको खाली कराया गया। और जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, पूरा ये कुंभ के समय में नई बनाई गई। दिस इज वेरी नियर टू, अगर मैं आपको नक्शा दिखाऊंगा, ये गंगा जी के एकदम किनारे है। तो ये बहुत ही पास था एरिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको अप्रोच की जो गलियां थी वो बहुत ही सकरी थी, उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चौड़ा नहीं करा पाया। तो इसको हमने मेन वेडिंग डे में यूज नहीं किया, लेकिन अगले कुंभ में काम आएगा, और कुंभ में मेन वेडिंग डे के अलावा भी काम आया। नाउ मेनी ट्रेन्स आर रनिंग फ्रॉम दिस स्टेशन। ये भी रिकॉर्ड 1 महीने में सर काम, अरे 1 साल में कंप्लीट हुआ। ये इंक्लोजर्स का व्यू है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इंक्लोजर्स बनाए गए जिसमें पैसेंजर्स को होल्ड किया जाता था 5-6 घंटे के लिए। ये देखिए, ये इंक्लोजर्स हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैसेंजर क्या होता है कि पैसेंजर नहाने के बाद वो 12 घंटे पहले स्टेशन पे आ जाएगा। धीरे धीरे आपके पास 10,000 आदमी हो जाएंगे जिनको आप स्टेशन पे नहीं ले जा सकते। उनको 12-13 घंटे आपको बैठने को जगह देनी है। तो फॉर दैट दीज इंक्लोजर्स वे मेड। ये तो स्टेशन, ये तो प्लेटफॉर्म का सीन है। एनक्लोजर्स बनाए गए थे जिसमें एनक्लोजर्स में सारी एमिनिटीज थी। ये सब जो 4 लेन एफओबी, ये जितने भी बनाए गए ये एफओबी, ये एक एफओबी था, हमने देखा यहाँ जाम हो जाता है तो इसके बगल में एक एडिशनल एफओबी बनाया गया। पूरे शहर के ट्रैफिक मूवमेंट प्लान को चेक करके रेलवे ने अपनी तरफ से सारे कंस्ट्रेंट हटाए। ये मैं आपको जो आईयूबी बता रहा था, देखिए पहले इतनी विड्थ होती थी और बाद में ये 2 और ब्लॉक्स डाले गए जिसकी वजह से डबल विड्थ हो गई और ट्रैफिक बहुत ही स्मूथन हो गया। पहले इसमें से सब निकलते थे, यहाँ जाम लग जाता था तो पैनिक होता था। मैंने आपको बताया क्राउड मैनेजमेंट में आपको पैनिक हर जगह अवॉइड करना है। अपने फीडर रूट्स पे अवॉइड करना है, अपने स्टेशन पे अवॉइड करना है, ट्रेन रनिंग में अवॉइड करना है। पैनिक हैज टू बी अवॉइड। The initiative by the mechanical department, 70 extra coaching rakes were requisitioned, all technical department, not only for mechanical. 70 एक्स्ट्रा कोचिंग रैक को आपको रखना होगा। कहाँ रखेंगे? 70 तो लाइन होती नहीं किसी भी स्टेशन पे। तो ये ट्रेनें इलाहाबाद से लेके गाजियाबाद तक अलग अलग लूप लाइन्स में मेंटेन करके रखी गई। CNW स्टाफ उनके साथ रहते थे और लाइन पे ही इंस्पेक्शन करके फिट दे देते थे। और ट्रेन इलाहाबाद से आती थी, सीधे चल जाती थी। वहां बहुत सारे शॉर्टकट किए गए। शॉर्टकट ऐसे अपने आप से नहीं किए गए, बोर्ड से हमने परमिशन लिया। RPC4 की वैलिडिटी बढ़ाई, बोर्ड से हमने डिस्पेंसेशन लिया मेंटेनेंस में, ACP के लिए डिस्पेंसेशन लिया। ऑल डिस्पेंसेशन आपको प्लान करने होंगे पहले से और रेलवे बोर्ड को लिखना होगा ये दीजिए।
Then we requisitioned about 5,000 extra staff from other zonal railways. इनके लिए एकोमोडेशन, 5,000 लोगों के लिए एकोमोडेशन, 5,000 लोगों की ट्रेनिंग। 5,000 में से 2,500 तो लगभग आईपीएफ स्टाफ थे, 1,500 कमर्शियल स्टाफ थे, मैकेनिकल उसके बाद सबसे ज्यादा मैकेनिकल CNW के थे, 500 थे, और स्टाफ थोड़े थोड़े थे। डॉक्टर्स भी 100 बुलाए थे। इन सबकी ट्रेनिंग कराई गई, इनको कम से कम 2 महीने पहले से बुलाया गया, इनसे ट्रेनिंग करने पूरा। इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों ने VHF सेट इमरजेंसी चैनल वाले, जिनमें एक ही इमरजेंसी चैनल था जो कि ओवरराइड नहीं होता था, 100 नंबर्स। नॉर्मल VHF सेट 850 नंबर, टोटल में 1000 नंबर्स। मेगा माइक्स 130 नंबर, हॉटलाइन, डेक्ट फोन। डेक्ट फोन इज अ डेडिकेटेड वायरलेस एक्सचेंज, जो कि स्टेशन पे सेटअप किया था, वो अपना एक्सचेंज था, इलाहाबाद स्टेशन पे बात होती थी। मंत्री जी से लिखवा के हमने BSNL को लिखवाया। उस समय फॉर्चुनेटली हमारे ही जो MOSR थे वो BSNL का भी काम देखते थे, तो उन्होंने BSNL से हमें प्रायोरिटी सिम दिलवाए, जिन पर कभी भी इंगेज टोन नहीं जाती थी। तो पिछले कुंभ में दिक्कत हुई थी, एन वक्त पे नेटवर्क कंजेशन हो गया था। जब एक जगह बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं तो नेटवर्क कंजेशन हो जाता है। वो भी आपको प्लान करना है कैसे होगा, एवरीथिंग आपको बहुत डिटेल में डिस्कस करना होता है, इसीलिए 2-2.5 साल लगते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वॉज प्रिपेयर्ड इन कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज, NDRI। NDRI आप लोग जानते हो उनका नेशनल, NDRF नेशनल डिजास्टर जो फोर्स होती है, बनारस में और गाजियाबाद में है। आर्मी के साथ मॉक ड्रिल करी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ मॉक ड्रिल करी। उसमें आपको केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर की भी मॉक ड्रिल करनी होती है, जिसमें लोग ऑक्सीजन मास्क लगा के आते हैं। यू हैव टू डू एवरीथिंग। फायर टेंडर अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आ नहीं सकते, इसलिए वैगन माउंटेड फायर टेंडर बनाए गए। फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया। फायर सेफ्टी ऑडिट में सारे जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हैं उनका रेजिस्टेंस नापते हैं, जिससे कि ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ तो नहीं रहा। टेम्परेचर नापते हैं, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब आग लगने वाली है। टीचर न्यू इनिशिएटिव, कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए, उनके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे हमने देखा कि मोबाइल टिकट लेने के लिए बहुत भीड़ होती है, तो वहां भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो हमने लोगों को एक नई मशीन इजाद करी। एक ऑफिसर है प्रवीण कुमार, हमारे सीनियर DCM थे, वो आजकल नई दिल्ली में सीनियर DCM है। उन्होंने एक मशीन बनाई, उसका नाम प्रवीण रखा गया। इट वॉज अर्लियर नेम्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग मशीन। वो इंजीनियर, वो प्रवीण कुमार, आई थिंक ही वॉज ए डॉक्टर, और उन्होंने डॉक्टर होते हुए ये मशीन डिजाइन करी, बनाई किसी की सहायता से, जो कि मोबाइल सिम बेस पे टिकट इश्यू कर देती थी, और इससे 1 करोड़ की लगभग एक्स्ट्रा अर्निंग की गई। इसका नाम हम लोगों ने उनके सम्मान में प्रवीण रखा। मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट वाज डन। मल्टीलिंगुअल, जैसे अगर हम सामने पैनल रखा था, कोई आदमी कन्नड़ में सुनना चाहता है, अनाउंसमेंट करने वाला हिंदी में बोल रहा है, लेकिन उसने कन्नड़ का बटन दबाया तो मशीन ट्रांसलेट करके उसे कन्नड़ में सुनाएगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। इनहांस सिक्योरिटी थ्रू सर्विलियंस, अब सबसे बड़ा काम था कि हमारे पास 10 स्टेशन थे, मैंने आपको बताया। फिर पुलिस कंट्रोल रूम है, फिर मेला कंट्रोल रूम है, सिविल कंट्रोल रूम है, सबसे आपको कनेक्ट रहना है लगातार। तो सारे हमने सबके CCTV कैमरे की फीड ली, अपने स्टेशन के सबसे ऊपरी पॉइंट पे एक कंट्रोल रूम बनाया। उस कंट्रोल रूम में जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, हर स्क्रीन में 4 कैमरे का आएगा, तो एक सामने एक जगह आपके 6 स्क्रीन है, तो 24 कैमरे इधर, 24 48 कैमरे आप एट ए टाइम देख सकते हैं। और लगभग हमारे पास 500-600 कैमरे की फीड थी। जो किनारे आदमी बैठा हुआ है, जॉयस्टिक से करके कैमरा स्विच कर देता है, जूम कर देता है, जूम इतना कर देता है कि एक आदमी अगर अटैची लिए तो वो भी दिखाई देगा, पैन कर देगा, टिल्ट कर देगा। तो यहाँ से देख के इस कंट्रोल रूम से, बहुत ही अच्छा कंट्रोल रूम था, और यहाँ से सारे डिसीजन रियल टाइम में लिए जा रहे थे। और यहाँ पर सिविल एड में एक IAS ऑफिसर भी बैठता था, सिविल पुलिस के ADG बैठते थे, और वो सारे लोग एक जगह बैठे रहते थे, जिससे एक सा निर्णय लिया जा सके। इसी तरह एक मेला कंट्रोल रूम था, उसमें भी हमारे ऑफिसर बैठते थे, उनके ऑफिसर हमारे यहाँ बैठते थे, जिससे कि कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छा रखना होगा। ये एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। सेंट्रल मेला कंट्रोल रूम एट इलाहाबाद जंक्शन, इट इज कनेक्टेड टू DRM ऑफिस एंड ऑल द स्टेशन एंड ऑल्सो टू सिविल कंट्रोल रूम।
देन आईपीएफ के पास भी एक फीडबैक सिस्टम था, जो वो लोग बहुत सारे बैठते थे और सारे फुट ओवर ब्रिजेज को वो वॉच करते रहते थे। हमने बताया फुट ओवर ब्रिजेज। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यू है टू इनकलकेट द टीम स्पिरिट इन योर टीम। तो हमने एक ये कुंभ रेल सेवा जैकेट बनाई, जिसको कि हमने चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी जब हमारे यहाँ आए तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब आप भी ये पहनिए, और जीएम तो पहन के आते ही थे, जिससे कोई स्टाफ छोटा बड़ा नहीं था, सब एक टीम की तरह काम करते थे। इसमें कुंभ रेल सेवक लिखा हुआ था। मैथमेटिकल मॉडलिंग करी गई। कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है, इट इज ए हाई एंड प्रोग्राम, जिसमें कि आप क्राउड डिफाइन कर सकते हैं कि इतने बुजुर्ग होंगे, इतने जवान होंगे, इतने बच्चे होंगे, और फिर उनको मूव कराएंगे। तो कंप्यूटर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो डिसाइड करता है कि इनको पहुंचने में किस स्पेस से कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे एडवांस सॉफ्टवेयर का यूज करके एनआईटी इलाहाबाद के द्वारा इसका सिमुलेशन कराया गया, जिससे कि ये पता चला, पहले से हमने पता कर लिया कि भीड़ को कितना समय लगेगा मूव करने में और कौन से रास्ते उसके लिए सुटेबल होंगे। ये उसी के स्क्रीनशॉट है कंप्यूटर से। ये हमारा एनक्लोजर है, एनक्लोजर से निकल के एफओबी पर लोग जा रहे हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट है कंप्यूटर सिमुलेशन का। इसमें हम कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कुंभ की एक खास बात होती है कि उसमें बुजुर्ग लोग बहुत होते हैं, महिलाएं बहुत होती हैं, लेडीज, ओल्डर एज एंड किड्स। यंग पर्सन आर कम, तो उसका मूवमेंट पैटर्न स्लो होता है। मोर ओवर दे आर कैरिंग वन ह्यूज लगेज ऑन देयर हेड, जिसकी वजह से उनका बैलेंस गड़बड़ाना भी बहुत चांस होता है। तो वो सब हमने इस कंप्यूटर में सिमुलेट कराया। बाद में इन लोगों का ये जो टॉपिक था, इट वाज पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल जर्नल, और उनको बहुत अप्रिसिएशन मिला इस काम के लिए। देन वी हैव डिजाइन वन ऐप, ऑल इन वन ऐप, जिसमें से सारी चीजें आप कंप्लेंट कर सकते हैं, टिकट बुक करा सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी डन। इट वाज ए न्यू ऐप फॉर कुंभ मेला, तो बनाया। सिंपल थिंग, एडिशनल टॉयलेट्स। इस तरह से हम लोगों ने स्टेशन का फेसलिफ्ट भी किया, जिससे स्टेशन अच्छे लगे लोगों को देखने में, क्योंकि अपनी ब्रांडिंग, ये पुल पर लाइटिंग की गई, जिससे ये पुल का फोटो है, ये दिस इज ब्रिज ओवर यमुना, यमुना के ऊपर ब्रिज है, इसका फोटो एल्गिन ब्रिज इज कॉल्ड। और इसके अलावा हम लोगों ने कुंभ को एडवर्टाइज करने में स्टेट गवर्नमेंट को मदद दी, क्योंकि वो भी हमारी काफ़ी मदद कर रहे थे, उन्होंने हमको फंड भी दिए थे। तो हमने अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट के रिक्वेस्ट पर अपनी ट्रेन पर ये विनाइल रैपिंग की, जिसमें कुंभ के इतिहास दर्शाया गया था, और चलो कुंभ चलें करके लोगो था, जिससे पूरे देश में प्रचार हुआ कुंभ का। और बाद में इसी थीम को इलेक्शन कमीशन ने भी अडॉप्ट किया, एंड दे रिक्वेस्टेड इलाहाबाद डिवीजन, प्रयागराज डिवीजन, to help them in disseminating and in creating awareness about the casting your vote by putting such vinyl stickers on the train. ये जो विनाइल स्टिकर्स लगाए थे, इसका भी स्टेट गवर्नमेंट ने पेमेंट किया था हम लोगों को। इसी सब के लिए बहुत कोऑर्डिनेशन करना होता है आपको। ये डिजाइन किया था हम लोगों ने। इसमें इलाहाबाद के हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाए गए थे, कुंभ का सीन दिखाया गया था, जिससे लोगों को, वंदे भारत उसी समय चली थी 2018, फर्स्ट टाइम इट वाज रन ड्यूरिंग द कुंभ मेला। फिर ये एक नक्शा बनाया था हम लोगों ने, दिस वाज स्पेशल थिंग। जैसे आप साइनेज लगाते हैं, कहीं भी लगा देते हैं, लेकिन आपको अगर यू हैव टू गिव गुड सर्विस, तो आपको अपने कस्टमर के दिमाग में जाके सोचना होगा कि व्हाट डू यू वांट। तो हमारे जीएम ने एक टीम ली, और टीम लेके हर स्टेशन पे, फुट ओवर ब्रिजेज पे धीमे धीमे गए और देखा कि कहाँ पर हम साइनेज लगाएं तो मैक्सिमम उसको लोग देख सकेंगे, मैक्सिमम आई बॉल से मिलेंगे। तो इस तरह से हमने साइनेज, फिर उनका एक नक्शा बनाया, दिस इज कॉल्ड साइनेज प्लान। कहाँ पिक्टोरियल साइनेज लगेगा, कहाँ पर कलर कोडेड साइनेज लगेगा, कहाँ पर डायरेक्शनल साइनेज लगेंगे। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ साइनेजेस। तो दिस वाज सच साइनेज प्लान वाज मेड। साइनेज प्लान पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग डिवीजन में काम करते हैं, या आप डिपो में ही काम करते हैं, वर्कशॉप में प्लान करते हैं, तो आप जो बोर्ड्स लगाते हैं रैंडमली नहीं कहीं चिपका देने चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आंख का लेवल कितना है, कहाँ पर वो बोर्ड लगाएंगे तो लोग मैक्सिमम देख पाएंगे, तभी उसका यूज है। ये डिप्लॉयमेंट प्लान जो मैंने बताया कि जब भी आप अपना कहीं पर क्राउड मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, तो आपके हाथ में एक ऐसा डिप्लॉयमेंट प्लान होना चाहिए कि टीम 1 कहाँ है, टीम 2 कहाँ है, आपकी सारे जितने रिसोर्सेज हैं वो पता होने चाहिए। जैसे आर्मी वाले एक नक्शा लिए रहते हैं। अब इस डिप्लॉयमेंट प्लान में अगर आप देखें तो क्या क्या चीजें दी हुई हैं, इसमें हम आपको बताएं। इसमें जैसे ये ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है, ग्रीन कलर से बड़ा, दिस इज कंट्रोल टावर। ये कंट्रोल टावर बनी हुई, ये पूरे स्टेशन की कंट्रोल टावर है। उसके बाद फायर टेंडर्स हैं, ये जो ये इस कलर से हैं, ये फायर टेंडर्स खड़े किए गए हैं स्टेशन के पास ही।
देन ऑरेंज कलर के जो ब्लॉक्स हैं तो वो जाए एम्बुलेंसेज, ऑरेंज कलर के रेक्टेंगल दी जाता है एम्बुलेंसेज, 3 एम्बुलेंसेज दिस साइड एंड 2 एम्बुलेंसेज दिस साइड। देन ये मेडिकल बूथ हैं, ये जितने हर प्लेटफॉर्म पे एफओबी के जस्ट नीचे मेडिकल बूथ्स बनाए गए हैं, जहाँ की एक डॉक्टर परमानेंटली एमबीबीएस डॉक्टर 24 आवर्स रहता था, लोगों को दवाई देता था। अक्सर लोगों की सांस फूलती है या कुछ दिक्कत होता है फुटओवर ब्रिज चढ़ते या उतरते वक्त, इसलिए एफओबी के पास बनाए गए, काफी इसमें दिमाग लगाया गया। देन सम रैपिड एक्शन टीम्स वेयर डिप्लॉयड ऑन बोथ एंड ऑफ स्टेशन। रैपिड एक्शन टीम कंसिस्टेड ऑफ 1 टेक्निकल पर्सन की अगर शीशा तोड़ना पड़े, 1 इलेक्ट्रिकल पर्सन की कहीं लाइट काटनी पड़े, कुछ लाइट चली जाए, 1 एमबीबीएस डॉक्टर कि किसी को कुछ हो जाए, देन 1 एएससी। इतने लोगों की एक रैपिड एक्शन टीम थी एंड 2 रैपिड एक्शन टीम्स वेयर डिप्लॉयड 24/7। फिर आपको जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं, दिस इज द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ कमर्शियल प्लस आरपीएफ। इन एडिशन टू दिस आरपीएफ ओनली आरपीएफ टीम वाज आल्सो डिप्लॉयड। मैंने आपको बताया कि 2500 आरपीएफ एक्स्ट्रा बुलाए गए थे, तो वो स्टेशन पे हर थोड़ी थोड़ी दूर में डिप्लॉय किए गए थे। हर जगह के डायरेक्शन को जाने को मैंने आपको पहले बताया, कलर कोडिंग करनी होती है। जैसे लखनऊ का आपका गेट भी नीले रंग में होगा, बगल वाला एनक्लोजर नीले रंग में होगा, मुगल सराय का गेट येलो रंग में होगा, पैम्पलेट्स येलो में होंगे। टिकट भी हमने येलो करने की सोचे थे, लेकिन टिकट वो पुलिस परमिट नहीं कर रहा था तो नहीं कर पाए। बाकी सब ये कलर कोडिंग की गई थी। साइनेजेज कैसे लगाए, देखिए स्टेशन के 1.5 किलोमीटर पहले से हमने साइनेज लगाए थे, जिससे अगर दूसरे साइड से आ जाएंगे, आप लेना चाहते हैं ए साइड से और वो बी साइड पे आ गए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमने 1.5 किलोमीटर दूर से गाइड किया था, और उसके पहले भी 10 किलोमीटर से हमने टीवी स्क्रीन के थ्रू गाइड किया था। और ये डायरेक्शनल बोर्ड है, ये लगे हुए हैं, तो आदमी जैसे ऐसे देखता है जिधर तीर बना हुआ है उधर ही चलते चले जाना है। अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने वाली स्पेशल गाड़ी पकड़ने के लिए संबंधित स्टेशन पर ही पहुंचे। यात्रियों की सुविधा हेतु अलग अलग दिशाओं में बनाए गए टिकट घरों तथा यात्री आश्रयों को विभिन्न रंग दिए गए हैं। इलाहाबाद जंक्शन स्टेशन अनारक्षित टिकट यात्री जिन्हें नैनी, मानिकपुर, सतना, झांसी, ग्वालियर एवं मुंबई की तरफ जाना है, वो प्रवेश द्वार के लाल रंग एवं यात्री आश्रय संख्या 1 पर जाए। अनारक्षित टिकट यात्री जिन्हें वाराणसी एवं लखनऊ की तरफ जाना है, वो प्रवेश द्वार 2A नीला रंग एवं यात्री आश्रय संख्या 2 की तरफ जाए। अनारक्षित टिकट यात्री जिन्हें विंध्याचल, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल संख्या 3 की ओर है, वो प्रवेश द्वार 5 सफेद रंग। ऐसे ही हम लोगों ने क्लीनलीनेस के भी अवेयरनेस वीडियो बनाए थे इस प्रकार के, जिसमें नुक्कड़ नाटक से किया, नुक्कड़ नाटक आर्टिस्ट इन सब ने फ्री में काम किया था कि कैसे सफाई रखें, क्या इस तरह के अवेयरनेस वीडियो बनाए गए। ये पैम्फलेट्स है सम टाइप ऑफ, देखिए इस पैम्फलेट में भी कलर कोडिंग है। जिस तरफ जाना है, अगर प्रयाग फाफामऊ की इंफॉर्मेशन है तो ब्लू बैकग्राउंड में लिखी है, अगर झांसी मानिकपुर की तो रेड बैकग्राउंड में लिखी हुई है, जिससे आदमी के दिमाग में सेट हो जाता है। इवन अनशेड्यूल्ड ट्रेन्स वेयर टाइम टेबल। न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट दिए गए, इस तरह के डायरेक्शनल बोर्ड, मल्टीलिंगुअल बोर्ड बनाए गए, यहाँ आप देख सकते हैं गुरुमुखी में और साउथ इंडियन लैंग्वेजेज में लिखे गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पूरा बनाया गया और मॉक ड्रिल करी गई। ये वैगन माउंटेड फायर टेंडर्स हैं जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने बनाए। इस तरह देखिए फायर टेंडर वैगन पे लगा हुआ है, इंजन लगा के रखा है, जिससे भीड़ हो जाए तो हम इसको सीधे लेके यहाँ से स्टेशन पर पहुंच जाए अगर कोई आग वाग लगे तो। 200% स्टैंड बाई इसका था, 10,000 लीटर के वाटर स्टोरेज था इसमें, और ये CNW का बहुत अच्छा काम था। जो 5,000 स्टाफ बुलाए गए उनका बैकअप है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेज कि हाउ वी इम्प्लीमेंटेड द प्लान। ये काफी इंटरेस्टिंग है देखना। हमने आपको बताया कि ऐसे कंट्रोल सेंटर था। कंट्रोल सेंटर 4 टीम के फीडबैक पे डिपेंड करता था
एक टीम होती थी फुट ओवर ब्रिज पर, इट वाज कॉल्ड एफओबी टीम। अनदर टीम वाज एट प्लेटफॉर्म, जो लोगों को सेफली बैठाती थी, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे होते चढ़ नहीं सकते ट्रेन में, उनको उठा के गोद में बैठाना पड़ता है। तो ये दिस वाज प्लेटफॉर्म टीम। देन देयर वाज टीम एट गेट्स, जो ये रेगुलेट करती थी कि स्टेशन पे अगर कैपेसिटी ज्यादा हो जाए तो उन लोगों को अभी रोके कि आप स्टेशन के अंदर मत आओ। देन देयर वाज ए एनक्लोजर टीम। देखिए एनक्लोजर जब भर जाता था तो उनको सेफली वहां से इवैक्यूएट करके प्लेटफॉर्म तक ले जाती थी। इन 4 टीम के काम थे। और ये प्लेटफॉर्म टीम में अगर कंपोजिशन देखें तो आरपीएफ, कमर्शियल स्टाफ, स्काउट एंड गाइड और डॉक्टर्स, ये 4 लोग होते थे प्लेटफॉर्म टीम में। मेडिकल टीम, ये चारों टीमें एक साथ काम करती थी, हर प्लेटफॉर्म पे चारों लोग होते थे। मेडिकल टीम में क्या होता था, एमबीबीएस डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ये इक्विपमेंट क्या रहते थे। रैपिड एक्शन टीम का बतला रहे हैं उनके पास क्या इक्विपमेंट रहते थे, मैंने आपको बता दिया है पहले। फायर एक्सटिंग्विशर, स्टैम्पीड मेडिकल किट एक हमने बनाई थी, स्टैम्पीड हो जाए तो तुरंत कोल्ड कटिंग इक्विपमेंट्स हर रैपिड, जो केवल एआरटी में होते हैं, और हमने स्पेशल खरीदवा के हर रैपिड एक्शन टीम को दे रखे थे। उनको ऐसी जगह डिप्लॉय किया था, एक ब्रिज को हमने बंद कर रखा था कि जिससे रैपिड एक्शन टीम मूव करके किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी अगर कुछ होता है तो। फायर इंसिडेंसेस को अलर्टनेस, हमने हर हर फुट ओवर ब्रिज पर 50 केजी के फायर एक्सटिंग्विशर व्हील माउंटेड रखवाए थे। एआरटी आर्मी 24 घंटे हॉट स्टैंड बाई पे थी, मतलब आदमी उसमें लगातार रहता था। मेन ब्रीथिंग डेट पे एआरटी आर्मी पे लोग बैठे रहते थे। ये नहीं होता था कि हूटर बजेगा तब आएंगे। इमरजेंसी वार्ड बनाया गया था, मैं बता चुका हूँ। आप ये देखिए, कोई बेहोश हो गया तो उसको लेके इमरजेंसी वार्ड में लोग जा रहे हैं, इन सब की जान बचाई गई। ये रैपिड एक्शन टीम का व्यू है। मेडिकल असिस्टेंस, हम इसमें थोड़ी सी पुरानी एडॉक फिगर थी कि 92,000 लोग, बाद में 1 लाख लोग हो गए थे। 1 लाख लोगों को फर्स्ट एड बूथ पर ट्रीटमेंट दिया गया और 2,000 लोगों की इमरजेंसी बूथ में जान बचाई गई। ये एनक्लोजर का व्यू है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी एनक्लोजर में। ये आप देखिए कि किस तरह से लोग आ रहे थे। एनक्लोजर्स हैं, प्लेटफॉर्म पे नहीं जाने दे रहे हैं, हमने बैरिकेडिंग लगाई हुई है जिससे लोग प्लेटफॉर्म पे न पहुंच सकें। डायरेक्शन के हिसाब से बाहर गेट की जो टीम है वो उनको पूछ के कि आपको किधर जाना है, उधर के एनक्लोजर में भेज रही है टीम। ये देखिए एनक्लोजर्स हैं। ये देखिए जिस दिन मैक्सिमम भीड़ हो गई तो क्या हो रहा था। देखिए कितने लोग हैं, सब स्टेशन के बाहर हैं, ये स्टेशन जाना चाहते हैं लेकिन ये लोग स्टेशन के बाहर हैं, स्टेशन में घुसना चाहते हैं लेकिन स्टेशन भी जैम पैक्ड है हमारा। तो अब उस समय कैसे मैनेज किया जाए। ये देखिए हमारे वॉलंटियर्स स्टेशन पे आके मेगा, बाहर रोड पे आके मेगा माइक से अनाउंस कर रहे हैं, दिस इज नॉट द स्टेशन पे। ये देखिए लोगों के दरवाजे से कुछ बैरिकेड लगा, हाथ से हाथ मिला के लोगों को रोका जाएगा और फिर धीरे धीरे रिलीज किया जाएगा। अगर इनको दरवाजा खोल दिया गया सीधे तो इन लोगों को चोट पहुंच सकती है। कितनी भीड़ है, यू कैन सी, यू कैन हैव ए व्यू ऑफ एनक्लोजर, हाउ डिफिकल्ट वाज टू मैनेज इट। ये देखिए इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कैसे लोगों को रिलीज करते थे। डिफॉर्मेशन टेक्निक इसको कहते हैं हम लोगों में।
ये देखिए, दरवाजा खोलने से पहले लोगों को हाथ से रोका जाएगा, और नहीं दरवाजा अगर उनके मुंह पे खोल दिया जाएगा तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे छोटी जगह से निकलने से, इसलिए उनको धीरे धीरे मैनुअली रिलीज किया जाता है। ये देखिए, एक साइड से हाथ खोल के रिलीज किया गया। दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता था कि यहाँ पर कैसे गेट खोला जाता है और कैसे ऑपरेशन किया जाता है डिफॉर्मेशन में, हाउ इट इज डन। क्योंकि आप अगर सीधे गेट खोल देंगे तो लोग बाग एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि जितने लोगों को छोड़ा जा रहा है वो उतने ही हैं जितने एफओबी पर आ सके। अगर ज्यादा लोग आपने छोड़ दिए तो एफओबी के पहुंचते पहुंचते इनमें वो दैट विल द बॉटल नेक एंड देयर आर चांसेज ऑफ स्टैम्पिंग। So everything was calculated. This is the enclosure team. It was in contact with FOB team. FOB team जब इनको क्लियरेंस देगी तो ये थोड़े से लोगों को छोड़ेंगे, फिर जैसे ही वो कह देगी कि नहीं FOB फुल हो गया, देन अगेन दे विल स्टॉप। गेट से आप नहीं कर सकते, आप ह्यूमन चेन बना के ऐसा कर सकते हैं। So now the next thing on the peak day मौनी अमावस्या, this is one side of the station, गंगा की साइड का है। देखिए कितनी भीड़ है, और इस भीड़ को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका हुआ है। जस्ट है एक, ये देखिए ड्रोन से लिया गया फुटेज है। कितने लोग ये सड़कों पे बैठे हैं, इनको आगे स्टेशन पे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि स्टेशन पर फुल हो चुका है, जो मैंने अभी आपको व्यू दिखाया था। देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे। एसएसपी इलाहाबाद इज पर्सनली स्टैंडिंग एट दिस बैरिकेड। डीएम इलाहाबाद इज अनदर ऑन द अदर साइड, जिसका वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सब भले लोग हैं, ये सब आके यहाँ बैठे हुए हैं सड़कों पे, और ये कहीं जा नहीं रहे इनक्लोजर्स में, कह रहे हैं हम स्टेशन जाएंगे, और उनको बैरिकेडिंग लगा के रोका गया है। इतना आपको कोऑर्डिनेट करना होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने। वो देख के कि हमारे स्टेशन पे ज्यादा भीड़ ना आ पाए, क्योंकि हमने लिख के दिया था, इसलिए उन्होंने बैरिकेडिंग लगा के रोका। यही काम उन्होंने 2013 कुंभ में नहीं किया था। मैं आपको बताऊं, ये काम कराने के लिए आपको उनसे कम से कम साल 1.5 साल, मैंने 2 साल में कम से कम 24 मीटिंग की होगी उनसे, तब उन्होंने ये काम करके दिया। ये देखिए दोनों तरफ से आने वाली सड़कें, पीछे अभी ये खाली एरिया है, और मैं दूसरी साइड दिखाता हूं आपको। ये दूसरी साइड है, इलाहाबाद स्टेशन के आने की 2 तरफ है, ये दूसरी साइड से। देखिए बगल में खुशबू बाग है। दिस इज ए हिस्टोरिकल प्लेस, इट इज ए वेरी बिग गार्डन, मुगल समय का है ये गार्डन। और हम लोगों ने प्लान ये किया था कि लोगों को इसमें रोक देंगे, लेकिन अब लोग जाने से रिलक्टेंट हैं, वो सड़कों पे बैठ गए हैं, वो नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम स्टेशन ही जाएंगे, और स्टेशन ऑलरेडी फुल है। और ये लोग बार बार बैरिकेडिंग को गिराने की कोशिश करते हैं। सड़क पे ही बैठे हुए हैं, पीछे से लगातार लोग आ रहे हैं। पीछे के चौराहे पे हमने लोगों को रोका हुआ है, इसलिए इतना कम है। हर चौराहे पे ऐसे लोग रुके हुए हैं। अब उस सिचुएशन में आप सोचिए, एक भी आप लोको फेल हो, एक भी कैरेज का फेल हो, एक भी प्रेशर ट्रबल, यू कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग कि आप कहें हम एग्जामिनेशन करेंगे, ये करेंगे। मैंने शताब्दी बिना एग्जामिनेशन के चलाई थी। शताब्दी कानपुर तक आई थी, मैं उसको सीधे इलाहाबाद ले आया, विदाउट प्लेटफॉर्म में लोगों से कह दिया बगल से देख लो, और इलाहाबाद से भी मुगल सराय चला दिया। सीनियर डीएम ही था इसके पहले वाले कुंभ में। जब तो आपको बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है जब यात्रियों की जान बचानी हो, तो उस समय आप वर्क टू रूल नहीं कर सकते हैं। तो ये क्राउड का दृश्य है। ये इसके अलावा प्रवासी भारतीय बहुत सारे। इन दिस फोटोग्राफ यू कैन सी जनरल वीके सिंह,
who has come to despise the NRI। बगल में हमारे सीओ हैं, डीआरएम साहब हैं, मैं हूँ। तो ये हम लोगों ने उनको एक स्पेशल ट्रेन चला के 3 प्रवासी भारतीय स्पेशल चलाई अलग से, जिनका स्पेशल अरेंजमेंट किया। दे वे वेरी हैप्पी। विदेशों में भी नाम हुआ, रेलवे का बहुत नाम हुआ। आप देख ही रहे हैं इसमें जनरल सिंह कितने खुश हैं अरेंजमेंट से। तो ये वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स भी, मेयर वेयर सब आए हुए थे। ये दोनों भारतीय लोग हैं, लेकिन अमेरिका में ये किसी इलेक्टेड पोस्ट पे हैं दोनों लोग। तो टोटल हमने 1080 ट्रेनें चलाई। वो तो प्रेस कवरेज में आप देखिए, प्रेस कवरेज हम लोगों को कितना अच्छा मिला। जो नॉर्मली खराब होता है, अग्नि परीक्षा में पास हो गया रेलवे। इस तरह कुंभ की महिमा पूरे विश्व में गूंज रही। अपनी क्षमता से ज्यादा रेलवे और रोडवेज ने ट्रेनें चलाई। ये वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूं। एंड दिस कंप्लीट्स माय प्रेजेंटेशन। ये कुंभ के बाद हम आपको बताएं कि रेलवे का बहुत नाम हुआ कि रेलवे कैन डू वंडर्स। और उसके बाद हम लोगों को हरिद्वार का जब कुंभ हुआ तब भी बुलाया गया। और अभी भी पूछा जाता है कि रेलवे ने इतना अच्छा मैनेज किया था। रेलवे के ऑफिसर्स इतने, सिविल वाले भी जो ऑफिसर्स थे उनको भी अच्छी पोस्टिंग मिली सबको, गुड प्लेसेस। तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था वो अभी आजकल गाजियाबाद में है। एसएसपी इज ऑल्सो इन गाजियाबाद, दे गॉट गुड पोस्टिंग। और सबसे बड़ी बात, सेटिस्फैक्शन बहुत था। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपना बेस्ट करना चाहिए। आज योग दिवस है। मैं फिर से कहूँगा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि योगा कर्मसु कौशलम, द एक्सलेंस इन डूइंग योर वर्क इज योगा। when you excel in your field, then you get connected to higher self, get connected to the supreme consciousness। आप जिस भी रिलीजन में हो, जो भी कहते हैं उसे अपने अपने नामों से लोग बुलाते हैं रिलीजन में, देखने का नजरिया है, बट अल्टीमेटली इट इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो जब आप एक्सेल करते हैं अपनी फील्ड में तो ऐसा होता है। कुंभ में फॉर्चुनेटली बाय ग्रेस ऑफ गॉड इट वेंट ऑन सक्सेसफुली। अब आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। गिव यू 5 minutes। You have any questions, anybody? चैट में भी लिख सकते हैं अगर किसी का माइक नहीं काम कर रहा हो तो। Okay, if there are no questions, then we can close the session। हम लोग चाहते थे कि आपका ये क्लास हम ऑफलाइन लें, बट ड्यू टू unavoidable circumstances we have to conduct it online। And we also feel that in online classes, communication and your attention span is all not very good। So next time when we will meet offline, we will हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको डील कर आएंगे। बट फॉर द डे वी कैन, फॉर दिस सेशन वी कैन कॉल इट अ डे। अगर आप लोगों को कुछ नहीं है क्वेश्चन तो। शाश्वत, आर यू देयर? ओके, वी कैन क्लोज द सेशन। Hello, sir. हाँ, बोलिए बोलिए। Sir, sorry, sir. I was having difficulty unmuting myself, sir. हाँ हाँ, ठीक है Yes, शाश्वत। sir. I believe that there are no questions, so we can close the session then। Right, sir. Right, sir. Participants, if you have any further questions later on, then you can always ask me in the chat, in the WhatsApp group, or you can ask me, and I will communicate your questions to sir. Because we still have some time remaining in this course. We still have at least 3-4 days in this मैं course. आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि I participated in 2 कुंभ मेला, one as senior DME and second as ADRM। और मैं कहना चाहूंगा कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट इसमें जितना अच्छा काम करता है, दैट गिव्स अस, मतलब वो हम लोगों को बहुत गर्व की फीलिंग देता है। एक भी कोई डिटैचमेंट नहीं, एक भी अनयूजुअल नहीं फॉर 53 डेज। 53 दिन तक एक भी अनयूजुअल नहीं हुआ। पता नहीं क्या है, तो भगवान की भी कृपा है। इलाहाबाद में कुछ ना कुछ अनयूजुअल होता है, लेकिन हमारे स्टाफ भी जाते नहीं थे। 20-20 घंटे स्टेशन पे रहते थे, वहीं सो जाते थे, वहीं पे ऑफिसेज में सोते थे स्टाफ, वहीं खाना खा लेते थे। बगल में उन्होंने 5-6 घर खाली करा लिए थे, उन्हीं में रहते थे, उन्हीं में खाते थे, अपने घर नहीं जाते थे। उनमें इतना जोश। आपको बतलाए कि ये मैकेनिकल का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। आप लोग और सभी का, मतलब मैकेनिकल ही नहीं कहूंगा, कमर्शियल में भी ऐसे ही था। टीटी दूर दूर से आए हुए थे। आईपीएफ बहुत मतलब आपको कभी ये इवेंट देखने को मिले, कुंभ मेला प्रयागराज 2024-25 में होगा, जरूर जाइए देखिए।
आपको रेलवे पे इतना गर्व होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर, So thank you very much, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।